Corona has started. And we have been so far quite successful, and now we are celebrating National Mathematics Day. Um, this will be almost 4 days event. We start with Professor Manish Jain. In fact, it's an opportunity for us. So first, I will request or invite our director, Sundar Chaudhary, to come on the screen and say a few words. Then we'll start introduction and other talks. Over to you, Sundar. Namaskar. On behalf of Nehru Science Center, I extend my warm welcome to all of you. As a tribute to the great mathematician Srinivas Ramanujan, India celebrates his birthday on 22nd December as National Mathematics Day. On this occasion, Nehru Science Center, Mumbai is organizing this year programs and activities for students, teachers, and general visitors from 21st to 24th December 2021. The programs are categorized and supported by National Council for Science and Technology Communication, NCSTC, Department of Science and Technology, Government of India, and Rajiv Gandhi Science and Technology Commission, Government of Maharashtra. As a part of this 4-day-long celebration of the National Mathematics Day, today we have with us for the online lecture Professor Manish Jain, Associate Teaching Professor, IIT Gandhinagar. Professor Jain is a YouTube sensation in this field. In fact, it is our Secretary of the Ministry of Culture, Government of India, who has reverentially referred his name. Recording in progress. Yes, sir. Continue, please. Today, he will deliver an online lecture on the topic, Come Fall in Love with Math. So, dear students, teachers and other interested participants, hope you have already logged on to today's program and must be waiting with a bated breath to listen to Professor Jain. Before we proceed to request Professor Jain to begin with his session, I request my colleague, Mr. Umesh Kumar, who is Curator G and Head of Education Department of Nehru Science Center, Mumbai, to introduce Professor Jain to the audience. Thank you, Professor Jain. Thank you all. Thank you, sir. It's a privilege. In fact, those who are on YouTube, science students or math students, and those who are on social media platform, I don't think they need any introduction for Professor Manish Jain. In fact, I myself have been following him and listened to many of his lectures. In fact, it was just a coincidence that when we were celebrating, I came across this talk and I requested Professor Manish Jain that can you do this favor to us for our audience? And he immediately, I think within 15 or 20 minutes, he said, I will be more than happy to accept this and do it for you. And sometime we'll come to Nehru Science Center also for a live workshop, since Corona has put that restriction. So, but still, it's a privilege for me to introduce Professor Manish Jain. In fact, he spends most of his time investigating the science behind simple toys, and is passionate about sharing his insights and excitement with people. He's associate teaching professor at Center for Creative Learning, a lab in IIT Gandhinagar, whose goal is to create and foster makers who can take innovation to the next level. Towards this goal, CCL designs and offers deep and joyful learning experiences built around STEM, which stands for science, technology, engineering, and mathematics, twice, and hands-on activities. The ultimate goal is to bring back the gleam in the eyes of students and teachers, who are mainly the audience today. Before founding CCL, Professor Manish has worked at Ayuka's Science Center in Pune with Padma Shri Arvind Gupta.
a well-known name. So for his toys and toys from trash and so many things. In his previous avatar, he spent 19 years in the area of chip design at Synopsys, Bangalore and Mountain View, serving as a director of R&D and science leading low power simulation efforts, where he has 5 US patents too. Manish ji has a bachelor's degree in electrical engineering from IIT Kanpur in the year 1993 and has also finished a few courses at Stanford University. In fact, with him, we have with us Mr. Jay Thakkar also, who himself is also from IIT Kharagpur. And after serving and found that that's not perhaps a PhD in other thing, his cup of tea, and joined Professor Manish Jain at CCL. Both of them, we are thankful to you, sir, both of you. And now, without taking any further minute, I will request Professor Manish to take over and start this wonderful lecture. Come and fall in love with math. Over to you, sir. So I'll just ask the उमेश जी to spotlight कर देंगे तो यहीं से सब चीज दिखा सकते हैं. So if all right, great. So I think spotlight has been done. Thank you so much. It is a pleasure. बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी, आपने मुझे बुलाया है और बहुत सारी बातें कह दी. YouTube सेंसेशन और मालूम नहीं क्या क्या, मुझे मालूम नहीं ऐसा सब है कि नहीं. हाँ, कुछ समय पहले हमने एक प्रोग्राम करा था, वो 30-30 आपको पीछे दिखाई दे रहा है, और उसके बहाने कुछ लोगों ने देखा. हम चाहते हैं कि और भी लोग देखें, पर क्या है, भारत में सिर्फ बॉलीवुड देखा जाता है क्योंकि आप लोग बॉम्बे से हैं, या क्रिकेट देखते हैं. दो ही चीज़ें चलती हैं भारत में, या तो क्रिकेट चलता है या बॉलीवुड चलता है. कल्पना करिए आपके यहाँ कोई बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है और उमेश जी के मोहल्ले में, मुझे मालूम नहीं आप कहाँ रहते हैं, बट जहाँ भी रहते हो, डोंबिवली, थाने और जो भी सर मैं वर्ली में हूँ, सेंटर में ही वर्ली में रहते हैं, और आपको कहीं पर ना सम्मान देना है किसी को, और आपको किसी महान हस्ती को बुलाना है. आपके पास चॉइस है, विराट कोहली को बुलाएंगे, कैटरीना कैफ को बुलाएंगे, या एक मनीष जैन को बुलाएंगे, या उमेश जी को, किसको बुलाएंगे? तो बहुत ही उत्तर बहुत ही क्लियर है. एंड आई थिंक समवेयर वी हैव टू सॉर्ट ऑफ ये थोड़ा सा थोड़ी सी जोक भी है, लेकिन कहीं ना कहीं सत्य भी है. मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें पढ़ाई को उस नजरिए से नहीं देखना पड़ेगा, हमको शिक्षा और मैथमेटिक्स और सब्जेक्ट्स को भी उतने ही इंटरेस्ट के साथ देखना पड़ेगा. तब कहीं ना कहीं ये अगली बार आपके यहाँ अगर कोई फंक्शन हो तो आप बोले नहीं यार, ये उमेश जो है ना, नेहरू साइंस सेंटर वाले, उनको बुलाते हैं, वो बढ़िया आदमी है. So I think that is what is my benchmark. That is what I am looking for, and that when that happens in our country, in our society, in our state, is when I believe real things in happen. I'm hoping someday during my lifetime that happens. Even if not, that's okay. That is who we are. But anyways, thank you so much for calling me here. और मुझे मालूम नहीं मैं किस भाषा में बोलूँ, मैं हिंदी और अंग्रेजी दो भाषाएं जानता हूँ, और बीच बीच में मिक्सचर होता रहेगा. ज्यादातर मुझे लगता है मैं अपनी हिंदी में ही बात कह पाऊंगा, क्योंकि मन की बात कहनी है तो हिंदी में ही करनी चाहिए, दिल की बात करनी है तो अगर आपको मान लीजिए किसी के ऊपर बहुत ज्यादा अंदर से कुछ भड़ास निकालनी है, वो कह रहे हैं कि संडे के दिन, आज संडे, मंगलवार के दिन बच्चे एकदम सर्दियों में अपना बैठे हुए, और ये क्या पता नहीं कहाँ से मैसेज आ गया कि आप बैठकर ये भाषण सुनिए, और बच्चे बहुत बोर हो रहे हैं. तो आपको अगर गुस्सा करना है तो क्या करिएगा? अंग्रेजी में करिएगा गुस्सा, तो मजा नहीं आएगा. हिंदी में करिएगा तो बड़ा मजा आएगा. एंड आई थिंक समवेयर दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट अगर मैं हिंदी में ही बात करने की कोशिश करूंगा, और आपको किसी में से भी लगे, क्योंकि आप जूम में हैं, तो आप मैसेज टाइप कर दीजिए, उमेश जी हैं, जय हैं, वो हमें बता देंगे, एंड आई विल ट्राई टू सॉर्ट ऑफ translate my words in the other language, in English. So एक सेकंड में बस अपना ये कीबोर्ड ठीक से रख देता हूँ व्यवस्थित, नहीं तो कुछ चीज़ें, हमारी टेबल बहुत भर जाती है गिवन दैट इतनी सारी ये चीज़ें दिखानी है. ठीक, चलिए, बहुत बढ़िया. So again, thank you so much for calling me. It would have been a pleasure, like I said, to come and visit Bombay and interact with you in real with Nehru Science Center. हो नहीं पाया तो ऑनलाइन ही सही. So thank you so much for all of you. 174 लोग जो यहाँ पर देख रहे हैं, thank you so much. जाने के पहले मैं सबसे पहले एक सवाल आप लोगों से, आप लोग सभी जा सकते हैं, और ये मैं आपको सीन चेंज करके भी दिखा देता हूँ. अरे ये दिख नहीं रहा है, एक सेकेंड,
आइटम पूल, हाँ आपकी स्क्रीन पर शायद ये आ गया हो सवाल, और इस सवाल के उत्तर देने के लिए आप इस वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, ये जो ऊपर लिखी है itempool.com/ccl/live। व्हाट इज, अरे ये गलत वाला सवाल आ गया भाई, हम तो वो उसमें चेंज करे थे, इसमें गणित डाला था। इसको चेंज करें क्या? आई डोंट नो व्हाई, आई थॉट आई सेव्ड इट। एक सेकेंड रुकिए, मैं ठीक सा सवाल डालता हूँ ताकि आप लोगों के पास सही सवाल पहुंचे। हाँ अब आ गया होगा शायद आपके पास। चलिए बहुत बढ़िया। आई अगर आपके पास ये सवाल आपकी स्क्रीन पर आपको शायद यहाँ लाइव दिखाई दे रहा है, व्हाट इज योर रिलेशनशिप स्टेटस विद मैथमेटिक्स? लव मैरिज, आई लव पढ़ाई, फोर्स मैरिज, अरेंज मैरिज, पेरेंट्स फोर्स मी टू स्टडी मैथमेटिक्स, मैरिज फॉर मनी, मुझे तो पैसे वाली नौकरी चाहिए, या अरेंज मैरिज, आफ्टर दिस टॉक लव मैरिज, डिवोर्स गेटिंग आउट तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है, और ये सवाल आपसे इसीलिए हम पूछ रहे हैं ताकि आप लोग अपने अपने मन की व्यथा हम लोगों को बता पाए। The idea is, of course, this is half in jest, but I think somewhere it tells us the reality. मुझे लगता है कहीं ना कहीं गणित को सिर्फ फॉर्मूले और इक्वेशन से जोड़ दिया गया है, और कहीं ना कहीं उसकी जो सबसे रुचिकर, सबसे मजेदार, सबसे इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं वो गायब हो जाती हैं। उनके बारे में ना हमारे शिक्षक चर्चा करते, ना हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे जो म्यूजियम्स हैं या साइंस सेंटर्स हैं उधर भी इन रुचिकर चीजों के बारे में चर्चा नहीं होती है। एंड आई विश हमारी क्लासरूम्स, हमारे टीचिंग, हमारे करिकुलम अगर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाए, जहां तक वो बात पहुंचती है वो एक अलग ही खेल है। एंड आई होप एंड with this talk you will realize that is what we are trying to do. To begin with, let me start with this simple एक्टिविटी। बहुत ही सुंदर चीज है। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से साधारण चीजों से गणित के बारे में, और मैं मुझे बहुत सारी चीजें लग रहा है कि बतानी है, पता नहीं किस फॉर्म में बताएंगे, बट अगर मैं दो चार अगर याद ना रहे तो जो आप याद दिला सकते हैं। I also want to sort of in this talk about some people who have really inspired us. वो लोग जिन लोगों ने हमको इस चीज को करने के लिए या इस काम को करने के लिए या इस दिशा में चलने के लिए प्रेरित करा, उन लोगों के बारे में भी मैं कुछ चर्चा करना चाहूंगा, और उनकी कुछ किताबों के बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा। आप लोग भी पढ़ें और आपको भी उतना ही मजा आए। अगर 50 साल, ऑलमोस्ट मैं 50 साल का होने वाला हूँ, अगर मेरे जैसे 50 साल वाले उम्र के एक अधेड़ आदमी को अगर गणित से प्यार हो सकता है, तो आप लोग तो यंग लोग हैं, इतने सारे यंग बच्चे मिल रहे हैं। द ओनली रीजन आई थिंक वी डोंट फॉल इन लव इज बिकॉज वी आर सर्विंग यू खिचड़ी ऑफ मैथमेटिक्स। और रामानुजम खुद बहुत कम उम्र में उनका देहांत हो गया। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने वो फिल्म देखी है, अगर नहीं देखी है तो देख सकते हैं, या उनकी किताब है जिसके बेस पर ये फिल्म आई थी। 32 साल की उम्र थी जब हम इंग्लैंड से वापस आए, तो फिर बिकॉज ऑफ द होल क्लाइमेट चेंज, आई मीन वहाँ का बहुत ठंडा वातावरण है, वो वेजिटेरियन थे, खाने में बहुत दिक्कत होती थी, अकेले थे, और जब वापस आए तो स्वास्थ्य ने साथ नहीं दिया, बहुत कम उम्र में उनका देहांत हो गया। लेकिन उस कम उम्र में भी इतनी रुचिकर चीजें जो करके गए, आज भी लोग उनते कितने ही, उनकी जो वो किताब है द लॉस्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स है, कितने सारे लोग अभी भी उसमें अपनी पीएचडीज करते हैं और समझ भी नहीं पाते कि वो फॉर्मूले आए तो आए कहां से, और मैं आपको वो दिखाऊंगा। और गणित कहीं ना कहीं जहां तक हमें लगता है कि सिर्फ फॉर्मूले की जैसी एक चीज जो हो जाती है, वहां से वो हम बात अपनी अलग करना चाहते हैं। हम कहते हैं कि यार इतनी रुचिकर चीजें आप कैसे कह सकते हैं कि आपको अच्छा नहीं लगता है या मुश्किल है या रात को रटना पड़ता है गणित के फॉर्मूले। एंड आई थिंक समवेयर अगर ऐसी स्थिति है तो मुझे लगता है आपको वो खिचड़ी ही खिलाई जा रही है। कोशिश करिए, कल्पना करिए 3 दिन तक अगर आपको कोई बोले, जितने भी बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं, आप करके देखिए। आपको मान लो कल को कोई बोले, ये नेहरू साइंस सेंटर से ईमेल आ जाए कि भैया ये जितना साइंस डे चल रहा है 3 दिन तक, ये 3 दिन तक आप खिचड़ी खाएंगे, उबली हुई दाल, उबले हुए चावल, नमक नहीं है। ये साइंस सेंटर से एक मैसेज आ गया, सब लोग ये जो भी स्क्रीन में बैठे हैं ना, सब लोग खिचड़ी खाएंगे। क्या होगा? सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम खिचड़ी, उबली हुई दाल, उबले हुए चावल। पहले दिन खा लिया, किसी तरह से खा लिया, दूसरे दिन फिर से सुबह दोपहर शाम खिचड़ी, और उसमें साइड में कुछ नहीं है, उसमें आपने सोचा कि हम पकौड़ी रख ले, समोसे रख ले, अचार रख ले, कुछ नहीं है, नथिंग। सुबह दोपहर शाम, तीसरे दिन फिर से खिचड़ी।
सोचिए चौथे दिन अगर आपको खिचड़ी दिखाई भी दे गई तो क्या होगा? ओह, सारी जो कुछ है बाहर निकल जाएगा। वो इसलिए कि सिर्फ खिचड़ी खा रहे हैं। अब इसी खिचड़ी के साथ कल्पना करिए आपके साथ थोड़ी सी अचार, थोड़ी सी पकौड़ियाँ, थोड़ा सा ढोकला, जलेबी, फाफड़ा, खाकड़ा, ये सारी चीजें अगर आ जाएं तो सोचिए क्या खाने में मजा आएगा। अब आपको खिचड़ी में मस्त मजा आएगा। That is what I think mathematics is also. I think formulas are important, all of this, but so are the most interesting things about mathematics, which are never talked about. And that is what I'm going to show you, that mathematics can be inherently beautiful. सुंदर है, सुंदर। मजा आ जाता है जब ऐसी सुंदर गणित की रोचक कहानियां पढ़ते हैं, गतिविधियां करते हैं, तो मजा आ जाता है। और फिर अपने आप वो फॉर्मूले अपने आप रट जाते हैं, हमें रटने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप याद रह जाते हैं। 4/3 पायर क्यूब, 4/3 पायर क्यूब अपने आप रट जाएगा। वो इसलिए क्योंकि अब मजा आना चालू हो गया। और मजा कैसे आएगा? ये सब जलेबी, ये सब ढोकला, ये सब गणित की जलेबी खा से ये मजा जब आएगा तब। चलिए मैं आपको एक छोटी सी ये चीज दिखाता हूँ और उसके बाद यू कैन सॉर्ट ऑफ सी हाउ and of course by the way उमेश जी, if people are, if अगर कुछ लोगों के कुछ सवाल हैं, कुछ लोगों को you can write your questions. And if we have answers, or we will try to see if we have answers, and I will try to sort of do that. मेरे हाथ में एक छोटा सा ये अरे ये गलत कागज आ गया, तो इसके लिए पीला कागज लेता हूँ मैं। ये तो सोचा ही नहीं, डेंजर है ये। मैं एक छोटा सा स्क्वायर काट रहा हूँ यहाँ पर। ये एक स्क्वायर है, ये तो इंटरेस्टिंग चीज हो गई भाई, सोचा नहीं। कैसे करेंगे? वाइट कर दें क्या? ब्लैक 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 ब्लैक, ये ठीक है, ये वाला करना पड़ेगा। आई डोंट नो आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं क्या हो रहा है। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। वो ये रहा है कि मेरे पीछे ग्रीन स्क्रीन लगी हुई है, और ग्रीन स्क्रीन में अगर ग्रीन दिखाएंगे तो ये गायब हो जाएगा, आपको कुछ नहीं दिखेगा। एंड दैट इज व्हाई दिस इज हैपनिंग। सो नाउ व्हाट आई हैव, एंड इन फैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसके ऊपर बड़ी अच्छा विज्ञान भी हो सकता है। ये ग्रीन है, ये आपको वो दिख जाएगा, बिल्कुल पारदर्शी हो जाएगा। पारदर्शी मतलब गायब हो जाएगा। और पीला है, इसमें भी गड़बड़ हो जाएगी। व्हाई इट इज इंटरेस्टिंग? बिकॉज येलो इज बेसिकली रेड प्लस ग्रीन। लाल और हरे को जोड़ते हैं तो पीला बन जाता है। कभी कभी और मौका मिला तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे। खैर, तो इसलिए हमने काला वाला ले लिया, काले वाले में दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैंने काले पर बेसिकली एक एरो बना दिया, आपको शायद दिखाई दे रहा हो। एक साधारण सा कागज है, उसके ऊपर एक स्क्वायर पेपर, उसके ऊपर एक एरो बना दिया और दो कॉर्नर से उसको पकड़ लिया और पीछे से मैं धक्का मारता हूँ, ठीक है। पीछे वाला भाग आगे आ गया। और मैं चाहता हूं कि ये काम, ये गतिविधि आज शाम को जितने भी बच्चे, जितने भी बूढ़े, जितने भी जवान और यंग लोग जो भी देख रहे हैं, ये सब ये गतिविधि, ये एक्टिविटी करने की कोशिश करें और सब लोगों को जादू दिखाकर एकदम मोहित कर ले। चलिए, क्या है? दोनों तरफ मैंने एरो बना दी। अब क्या बड़ी बात है, मैंने इन दो कॉर्नर से पकड़ा है, अब मैं इस हाथ से पकड़ लेता हूं और कुछ नहीं है। अब देखिए क्या होता है। अब ये एरो ऊपर नीचे हो रहा है। इस हाथ में ऊपर ऊपर है, इस हाथ में ऊपर नीचे है, और इस हाथ में वापस से अब मैं लेके आता हूं तो देखिए क्या होता है। अब ये नीचे नीचे हो गया। करा क्या? कोई जादू नहीं है मेरे हाथ में, कोई मैजिक का डब्बा या व्हाटएवर नहीं था। साधारण सा एक पेपर, उसके ऊपर एरो बना दिया। ये जब घूम जाता है, पीछे वाली साइड जब आगे आ जाती है तो क्या हो जाता है? एंड व्हाट आई आल्सो डिड वाज आई टर्न्ड इट अराउंड दिस एक्सिस व्हिच इज सिमेट्रिकल। चाहे ऐसे रख लें चाहे ऐसे रख लें, सिमेट्रिकल है, कैसे भी रख सकते हैं। तो ये चीज हुई तो हुई कैसे? ये आपके लिए सोचने के लिए सवाल है, करके देखिए कब होगा। और सबसे पहले तो जादू दिखाइए। और दूसरा सवाल, क्या करें इस कागज में, या क्या करें इस एरो को कि ऐसा ना हो? मतलब ऐसा क्या चित्र बना दे, या ऐसा इसकी शेप क्या कर दे कि हम कैसे भी धक्का मारें वही का वही रहे। Now, and by the way, this logic of mathematics is something that we use when we do image translation. जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट को यहां से यहां घुमाना हो ना, 90 डिग्री घुमाना हो, तो उसको कॉम्प्लेक्स प्लेन में आई से मतलब मल्टीप्लाई, वो सब तमाम चीजें करते हैं, बट उसकी बेसिस ये चीज है, रोटेशन अबाउट रोटेशन अबाउट दिस एक्सिस।
एंड इट इज वेरी इंट्यूटिव। नॉन इंट्यूटिव है क्योंकि लगता है, क्योंकि ये एरो जो है ये सिमेट्रिकल है, चाहे इस लाइन के अराउंड चाहे इस लाइन के अराउंड, दोनों डायगोनल्स के अराउंड सिमेट्रिकल है, लेकिन इसका बिहेवियर बदल जाता है। और क्यों बदलता है ये आप खुद करके देखिए, सीखिए, समझिए, और ना समझ आए या आपको कुछ और सवाल हो तो हमसे जरूर पूछिए। वी वुड बी वेरी हैप्पी टू sort of आंसर योर क्वेश्चन, और इफ यू नो ऑफ कोर्स। नाउ इमेजिन क्लास में आए, सबसे पहले ये चीज कर दी, नेहरू सेंटर में गए, सबसे पहले ये चीज कर दी, मजा आना चालू हो जाता है। अब सोचने के लिए दिल मन मजबूर होता है कि यार ये हुआ तो हुआ कैसे, है ना। एक और चीज मैं करके दिखाता हूँ, क्योंकि अब मुझे थोड़ा सा जैसे क्या होता है ना, वो जब गाड़ी चलती है तो उसको इंजन को गर्म होने में टाइम लगता है ना। अभी ठंडे के बाद में अचानक उन्होंने बोला आगे बोलिए तो समय लगेगा थोड़ा सा गाड़ी में वो डालने के लिए। तो अभी धीरे धीरे मेरी गाड़ी गर्म होगी, बाय द टाइम 5 बज जाएंगे। मैंने अभी क्या करा, एक छोटा सा एक कागज लिया, साधारण सा चार्ट पेपर है, और इसको मैंने फोल्ड कर दिया। ठीक है, फोल्ड कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। अब फोल्ड करने के बाद मैं यहाँ से एक, मान लीजिए, सीधा काट देता हूँ इसको, सीधा, है ना, ऐसे। तो आप पूछेंगे भाई ठीक है, ये काट दिया इसको सीधा। ऑलराइट, तो ये सीधा कट गया। इसको खोलेंगे तो क्या होगा भाई, इसमें क्या बड़ी बात आपने दिखा दी, सीधा काटा सीधा कट गया। अब की बार हम कुछ और करते हैं, सीधा काटने की जगह अब इसको हम तिरछा काट देते हैं। तिरछा मतलब लाइक दिस, ऐसे टेढ़ा। यू अपना ये जो कटर लिया, इसको हम टेढ़ा करके टेढ़ा काट देंगे। ठीक है, वेरी नाइस। एंड नाउ आई विल ओपन दिस, और क्या लगता है आपको क्या होगा? ये तो वेव बन गई। ये तो जैसे मुंबई के समुद्र में वेव चलती हैं, ये वेव बन गई। हमने करा क्या था, एक सिलेंडर को तिरछा काट दिया और वो वेव बन गई। सिलेंडर को तिरछा काटने से वेव बन गई। और अब एक और काम भी कर सकते हैं। अभी हमने कैसे काटा था, तिरछा काटा था, बाय कीपिंग दिस लाइक अ सिलेंडर। नाउ आई विल प्रेस इट, प्रेस, दबा दिया, और अब फिर से इसको मैं काट देता हूं। अब देखिए क्या होता है, और ये मैंने काट दिया, अब देखिए क्या हो जाता है। अब तो ये वेव तो बनी, लेकिन ये सीधे लाइन वाली वेव बन गई। इसको हम ट्रायंगुलर वेव बोलते हैं। तो एक तरफ अगर हमने तिरछा काटा, उसको गोल बना के, जब हमने इसको गोल बना के तिरछा काटा, तो ये साइन वेव्स बन गई। इसको कोसाइन वेव भी बोल सकते हैं, बट साइन वेव बोलते हैं, और परिभाषा जानने की जरूरत नहीं है। बट वेव्स बनी, तो बनी क्यों, ये वेव आई कैसे? हमने तो गोला था और गोले में चक्कू चला दिया, वेव कैसे बन गई? और ये मैं चीज आपको एक खीरे से भी करके दिखाऊंगा। होपफुली आई कैन गेट दैट। I'm just trying to get Kira. Let's see if I can. So I'm just trying to sort of see if I can get Kira for you and show you the same thing. But this is very interesting. ये आया गोला कहाँ से? और सबसे मजेदार बात, और वो मैं आपको अभी इस चीज का अगर हम एरिया निकालने जाएंगे, ये जो इनफैक्ट ओवरहेड में करके मैं दिखा देता हूँ, और ये चीज अभी खीरे से करके दिखाते हैं एक सेकंड में। बट लेट मी सी इफ आई कैन गेट माय ओवरहेड। ऑलराइट, हाँ, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये मेरी साइन वेव थी। और नीचे में कागज रख देता हूँ ताकि मेरा गंदा ना हो। ठीक है, सभी को दिखाई दे रहा है। ये जब हमने एक साधारण से साइन वेव, हाँ मेरा खीरा भी आ गया, थैंक यू वेरी मच। और यही काम हम खीरे के साथ भी करेंगे। अगर आप लोगों के पास भी खीरे हो तो बिल्कुल कर सकते हैं, नहीं है तो ले आइए। और बाद में बस चीज क्या है, ये करने के बाद आप इसको खा भी सकते हैं। तो ये साधारण सा खीरा है, इसका मैंने ये तो बहुत ही गड़बड़ है। ये फिर से हरा था तो गायब हो गया, सॉरी अबाउट दैट। तो इसको ओवरहेड में ही दिखाते हैं। देखिए खीरे का मैंने एक, ये क्या सिलेंडर बना दिया। ठीक है, अब इस सिलेंडर को मैं क्या करूंगा, फिर से तिरछा काट दूंगा, इस कोने से लेकर
इस कोने तक काटूंगा चाकू से, ठीक है। कैसा, यहाँ से चालू करेंगे एंड आई विल मेक अ डायगोनल, यू नो दिस तिरछा कट लाइक दिस। ऑलराइट, देखिए कैसे कटा है, यहाँ से चालू करा और टेढ़ा दिख रहा है ना, टेढ़ा कट लगा रहे हैं, टेढ़ा कट यहाँ एंड से चालू होकर के दूसरे वाले एंड तक कर देंगे, ठीक है। तो ये 2 पीस हमारे बन गए, एक जैसे 2 पीस बनेंगे, ठीक है। ये तो आप देख भी सकते हैं, आपको इसमें क्या बोलेंगे, क्या बड़ी बात बताएं। तो इसको अगर हम ऐसे देखें तो ये एक पूरा सिलेंडर है, यहाँ से देखें तो पूरा सिलेंडर है, और इसको इस तरह भी रख सकते हैं। तो देखिए कुछ और बन गया, आपको अगर पता हो या ध्यान में, तो इस तरह के आपके घर में जो पाइप में सॉकेट्स आते हैं वो ऐसे ही होते हैं, इधर से पानी जाता है और इधर से निकल जाता है, पाइप ऐसा होता है वो। बेसिकली इट इज 2 हाफ सिलेंडर्स जॉइंट टुगेदर, बेसिकली दे आर सेम पीसेज। अच्छा, इसको ऊपर से देखते हैं तो क्या दिखेगा आपको, ऊपर से, बिल्कुल ऊपर से जैसे आप देख रहे हैं, तो ये सर्कल दिख रहा होगा, राइट। और अगर साइड से देखेंगे तो ट्रायंगल दिखेगा ऑफ कोर्स, और बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर देखेंगे, इस चीज के परपेंडिकुलर, तो ये इलिप्स दिखेगा। इलिप्स मतलब अंडाकार शेप होगी, लाइक एन एलिप्स, है ना, ये इलिप्स है। अब सवाल ये भी उठता है कि इलिप्स है तो इसमें इसके फोसाई कहाँ होंगे, बट उसको बाद में देखेंगे। और अब देखिए सबसे मजेदार चीज, इन दोनों पीसेस का यदि मैं ये छिलका उतार दूं, ये छिलका, हरा छिलका अगर मैं उतार दूं, ये बीच का पार्ट बाकी बच गया, ये छिलका अगर मैंने उतार लिया तो ये इस छिलके को बिल्कुल यही बना है, देखिए इसकी शेप बिल्कुल यही है, और ये साइन या कॉस, कॉस या जो भी बोले। और मजेदार चीज, इसका एरिया पाई है, और मजेदार चीज, इसी चीज को अगर हमने आधा कर दिया, अगर इसी छिलके को आधा काट दिया, इसी छिलकों को मान लीजिए बिल्कुल बीच से आधा काट दिया, तो ये जो बचा हुआ भाग है, ये वाला भाग, इसका एरिया 1 है। इसमें से पाई गायब हो गया, जबकि ये हमारे छिलके के राउंड बिल्कुल बैठता है फिट, मतलब खीरे के राउंड, क्योंकि इस आधा भाग है ना ये छिलके का, इसके ऊपर गोला में, गोलाई में पूरा बैठता है, लेकिन इसका एरिया आप निकालने जाएंगे तो इसका एरिया 1 आएगा, और ऊपर वाले पूरे छिलके का एरिया पाई है। अब सवाल है कि ये गायब कहां से हो गया। और भी मजेदार चीजें हैं, वो आप करके देखिएगा, और जितनी बार भी करेंगे इतनी रुचिकर चीजें गणित से हम खीरे, साधारण सी सब्जियों से बड़ी रुचिकर गणित कर सकते हैं। एक और चीज, क्योंकि हम दिखा ही रहे हैं तो ये भी दिखा देता हूं। इस बार हम क्या करेंगे, बीच के भाग से कोने तक काटेंगे, बीच से चालू करके, ऊपर में बीच से चालू करके कोने तक काटेंगे, और ऐसा ही दूसरी तरफ भी कर देंगे। तो इसमें कोई खास बात नहीं है। ये जो ऑब्जेक्ट बनेगा इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज है, मैं दिखाऊंगा। तो ये हमारा बेसिकली सिलेंडर था, और इसको हमने 2 भागों में काट दिया, एक ऐसे और एक ऐसे, ऊपर के बीच से लेकर एंड तक काट दिया। तो ये बीच का जो ऑब्जेक्ट बना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या है ये ऑब्जेक्ट, और मैं नीचे कागज दूसरा चेंज कर देता हूँ ताकि आपको ठीक से दिखाई देता रहे। Right, these are my 2 objects. Okay, ये देखिए आपके सामने बिल्कुल यही ऑब्जेक्ट्स आ गए, है ना। और ऐसा बीच से लेकर एंड तक काटने से ये जो चीज बची, इसको ऊपर से देखेंगे तो सर्कल है, साइड से देखेंगे तो ट्रायंगल है, और इधर से देखेंगे तो एग्जैक्टली स्क्वायर है। तो ये हमने एक ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट बना दिया है जो सर्कल भी है, ट्रायंगल भी है और स्क्वायर भी है। 3 दिशा से देखते हैं तो 3 अलग अलग चीजें दिखाई देती हैं। इनफैक्ट ये हम लोगों ने फिर इसको प्लास्टिक में भी बनाया, इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। ये जो है ऑब्जेक्ट, इसको सामने से देखिएगा तो गोला है, इधर से देखिए स्क्वायर है, इधर से देखिए ट्रायंगल है। बेसिकली एक सिलेंडर को तिरछा काट दिया। और मजेदार चीज क्या है कि यही चीज, मजेदार चीज क्या है, अगर कल्पना करिए ऐसे आपके पास कोई तिजोरी आपको बनानी हो जिसमें ये ऑब्जेक्ट हो जाए,
कि ये गोला, त्रिकोण और स्क्वायर लग जाए, है ना। ऐसा मान लीजिए उसकी जगह 5 चीजें हैं। अब आपको क्या है, जैसे हमने खीरे से ये बनाया, जो ये जो बनाया था ये वाला, जो अभी क्या है, सर्कल भी है, स्क्वायर भी है और ट्रायंगल भी है। मान लीजिए इनमें से कोई भी 3 ऑब्जेक्ट्स आपको ढूंढने हैं, एंड दैट इज योर चैलेंज, दैट इज योर होमवर्क, दैट इज योर, शाम को जब मम्मी के साथ बैठ के आपके किचन में हेल्प करेंगे तो ये काम कर सकते हैं। क्या करना है, ऐसा ऑब्जेक्ट बनाएं जो सर्कल भी हो, ट्रायंगल भी हो, प्लस भी हो। सर्कल हो, ट्रायंगल हो, टी हो, यू नो ये स्क्वायर हो, ट्रायंगल हो, प्लस हो, स्क्वायर, ट्रायंगल, यू नो टी, एंड थिंग्स लाइक दैट। 10 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 चुनने हैं। और मतलब क्या है कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो उसमें से पूरा बिल्कुल इधर से डालें, इधर से बाहर आ जाए, और बीच में जाते हुए इस पूरी चीज को छू कर आए। मतलब इट शुड टच द होल थिंग, द होल सरफेस एट सम पॉइंट इन टाइम। ऐसा नहीं कि एक ही ऑब्जेक्ट बनाया, उसके ऊपर सर्कल भी बना दिया, ट्रायंगल भी, और एक ही तरफ नहीं, एक तरफ से देखने पर ये हो, एक तरफ से देखने पर ये, एक तरफ से देखने पर ये। 8वें में हम लोग ये बात करते हैं टॉप व्यू, साइड व्यू, फ्रंट व्यू। दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। I'm talking about top view, side view, front view. But now all of these things are not being done by on piece of paper. अब तो आपको हम बोल रहे हैं कि भाई छिलके में, ये खीरे में करके देखो, और मन करे तो बाद में खा भी सकते हैं, वेस्ट भी नहीं हुआ। गणित भी पढ़ ली और छिलका भी वेस्ट नहीं हुआ और खीरा भी खा लिया। प्रॉब्लम है कि लौकी के साथ आप करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, कच्ची लौकी लोगों को अच्छी नहीं लगती है, तो खीरे के साथ करिएगा तो अच्छा है। खीरा करिए, खेलिए, उसके अंदर गणित ढूंढिए। और हमने 30 का मैं आपको वो एपिसोड दिखा देता हूँ, शायद यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। सब्जियों की गणित, ये आपको जो यहाँ पर मेरा पेन कहाँ चला गया, मेरा पेन कहाँ चली गई। ओके, ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये 30 का एपिसोड है, मैथ इन वेजिटेबल्स। हमने जो 30 प्रोग्राम करा था पिछले साल ऑनलाइन, जिसके लिए कह रहे हैं कि यूट्यूब में काफ़ी लोगों को अच्छा लगा। उस प्रोग्राम के हमने 26 सेशन करे थे, 5 लोगों की रजिस्ट्रेशन थी, 1 करोड़ लोगों ने देखा, 10 लाख कमेंट आए, 1.25 लाख सब्सक्राइबर, 2.25 लाख सब्सक्राइबर थे, 75,000 लोगों ने होमवर्क सबमिट करे। एंड देयर वाज नो publicity, this that whatever that we did, and we all, because क्यों हमने हिंदी में करा। सबसे पहला एपिसोड उसका इनफैक्ट था भी यही, कम फॉल इन लव विद मैथ, एपिसोड 0 था, आप चाहे तो देख सकते हैं वो, क्योंकि एडिटेड था तो उसमें बहुत सारी गतिविधियां हमने 50 मिनट में दिखाई है। आप लोग बिल्कुल जाकर देखिए, इट इज एक्चुअली वन ऑफ आवर मोस्ट पॉपुलर वीडियोस, जाकर जरूर देखिए, कम फॉल इन लव। बट ये जो हमने 30 स्टेम प्रोग्राम करा, इसमें उद्देश्य सिर्फ यही था, गणित और विज्ञान में जिंदगी का तड़का। और जो पीछे आपको दिखाई दे रहा है, स्पाइसिंग ऑफ द करिकुलम, जो हमारा पाठ्यक्रम है इतना नीरस है, बेजान है, बोरिंग है, उसके अंदर कैसे हम उसके अंदर जान डाल सकते हैं। गणित को बहुत ही सरस, गणित को बहुत ही रंगीन, और गणित में ऐसी चीजें डाल दें, ऐसी ऐसी चीजों में गणित ढूंढ के निकालें जो आपने कभी देखी ना हो। ऐसे सवाल पूछे कि रात की नींद और दिन का चैन दोनों गायब हो गए। सोचिए, कल आपकी अपने भाई बहन के साथ या मम्मी की पापा से लड़ाई हो रही है, और जब लड़ाई हो गई खूब अच्छी तरह से, शाम को बैठे हैं और अपना सोचा यार वो छोड़ो, लड़ाई तो बहुत हो गई, अब थोड़ी सी ना बढ़िया सब्जियों में गणित करते हैं। ऐसे सवाल जो आपको घर की लड़ाई से बाहर भेज दे और आपको एक अलग ही दुनिया में, गणित की दुनिया में ले जाएं, दैट इज व्हाट द आइडिया। एंड इनफैक्ट इफ यू सी किस तरह के एपिसोड्स थे तो शायद आपको समझ आएगा। मैथमेटिक्स एंड साइंस ऑफ म्यूजिक, मैथ ऑफ म्यूजिक, कार्ड्स, ताश के पत्तों के में गणित, यू नो कैलेंडर की गणित, मैथ ऑफ वेजिटेबल्स, मैथमेटिकल लैम्प्स, ये सारे। और फिर यहाँ पर ऑफकोर्स हमने पाई का हिसाब, पाई के ऊपर बड़ा ही सुंदर मिस्ट्रीज ऑफ क्रिकेट, जिसमें काफी सारी गणित थी, क्रिकेट की गणित वो करी थी। पाई डे स्पेशल, पाई डे के ऊपर भी स्पेशल। ये सारे एपिसोड्स इंटरनेट पर मौजूद हैं, यूट्यूब पर मौजूद हैं, आप बिल्कुल जाकर देखिए। और अगर आपको कैसा लगता है बिल्कुल बताइए। अब मैं थोड़ा सा समय का भी ध्यान रखना पड़ेगा, 4:42 हो गए, बाप रे, समय तो ऐसे भागता है, मुझे 5:15 तक खत्म भी करना है। क्या करा जाए, ठीक है, शुरुआत कर देते हैं अभी वापस से। मेरा नाम मनीष जैन है, मैं आईआईटी गांधीनगर से बोल रहा हूँ। ये साबरमती है, ये आईआईटी गांधीनगर है। यहाँ पर हमारी एक छोटी सी लैब है जिसका नाम है सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग, जहाँ पर हमारी
इस तरह की हमारी लैब है, ये हमारी लैब है, इस तरह से भी दिखती है। और हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि किसी तरह से आंखों में चमक वापस आ जाए। जो खोई हुई आंखों की चमक है, इन बच्चों की आंखों में जो चमक है, ये हमने असली में चित्र आसाम में बहुत समय पहले खींचा था। इस तरह से ऐसी चीजें बताएं, ऐसी चीजें करें कि आंखों की चमक वापस आ जाए। और जो यू नो द ब्रिंगिंग बैक दैट ग्लीम इन द आईज जो बोलते हैं, वो हमारा उद्देश्य है। ऐसी वस्तुएं, ऐसे गेम्स, ऐसी एक्टिविटीज, ऐसी स्टोरीज करें कि आंखों की चमक वापस आ जाए। चलिए उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, मेरे पास समय कम है, मैं फटाफट आप लोगों को कुछ गतिविधियां दिखाने की कोशिश करता हूँ गणित से जुड़ी हुई। मेरा ये डब्बा कहाँ चला गया? और उसमें गेंद थी, वो गेंद गायब हो गई। एक सेकंड रुकिए, मैं आपको वो एक त्रिकोण के 180 डिग्री होते हैं कि नहीं होते हैं, वो करने की कोशिश करके देखने की कोशिश करता हूँ। वो डब्बे में मेरी पड़ी थी, वो शायद है नहीं। जी उनको बोलना भाई कि ये डब्बा जो है ना, उसमें है नहीं ये, वो जो गेंद है ना, गेंद का त्रिकोण। ओके सर। हाँ, सो इट शुड बी देयर। चलिए, उसके बाद मैं आपको सबसे पहले ताज का घड़ी दिखाऊंगा, बट पहले आइंस्टाइन की घड़ी से हम चर्चा करेंगे। और ये त्रिकोण से चौकोन है, ये दिखाता हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया। ये बहुत ही सुंदर खिलौना है, अभी हमने थोड़े दिन पहले ही बनाया था आपके सामने। यहाँ पर दिखाता हूँ। ये तो बहुत ही गड़बड़ है भाई। ओवरहेड, ठीक है। कल्पना करिए, आपके घर में, ऐसा सोच सकते हैं कि आपके घर में मेहमान आए हुए हैं और आपके घर में ये टेबल है और टेबल में 4 लोग बैठे हैं। नो बिग डील, 4 लोग बैठे हैं भाई, क्या बड़ी बात है। अचानक उनमें से एक मेहमान चला गया छोड़ के। अब आपके पास कितने लोग बचे? 3 ही लोग बचे। अब क्या करेंगे? नई टेबल तो नहीं लेके आ सकते, लेकिन इसी टेबल को खोल सकते हैं। और इसी टेबल को हमने खोला, ये 3 लोगों की टेबल बन गई। बिल्कुल कुछ नहीं तोड़ा, वही की वही टेबल है। अब ये 3 लोगों की टेबल है। अभी वापस से आपके मित्र आ गए, तो ये अब ये 4 लोगों की टेबल बन गई। सवाल ये है कि किस तरह से इस टेबल की गणित करी जाए। इस चौकोन में ये सारे कौन से पॉइंट्स हैं जिन पे हमने ये लाइन खींची और जिसके कारण ये जोड़कर, और फिर हमने बड़ी सुंदर चीजें करी। ये हमने करा, ये जो टेबल थी, ये 3 से 4 की टेबल थी, माने ट्राइंगल से स्क्वायर बन जाती है। फिर हमने एक और टेबल बनाई जो 4 से 6 कर देती है, यानी चौकोन से षटकोण। और फिर एक और टेबल बनाई जो वापस से इसको 3 तक ले आती है। 3 से 4 से 6 से 3। और ये सारी चीजें हमने आई डोंट नो कौन सा एपिसोड में था, बट एकलव्य के शायद किसी एपिसोड, ट्राइंगल टू सर्कल एक एपिसोड था, बड़ा ही रुचिकर मजेदार एपिसोड था। उसमें आप जाकर देखेंगे तो आपको ये चीज दिखाई देंगी। 3 to 4 to 6 to 3, राइट। एंड उसमें ही हमने पाइथागोरस थ्योरम के सुंदर प्रमेय एक अलग ही तरीके से करने की कोशिश करी थी। वो भी आप बिल्कुल जाकर देख सकते हैं। और मेरे पास ये पड़ा हुआ है, ये गेंद एक पड़ी है क्या? गेंद में देखने की कोशिश कर रहा हूँ। एक सेकेंड, मेरी बॉल, हाँ ठीक है, चलिए आगे। ये आपको शायद यहाँ पर दिखाई ना दे, बट हाँ, ये बॉल आई थिंक हमारी मिसिंग है। बॉल नहीं है। चलिए, बॉल को छोड़ देते हैं। सर व्हाइट बैकग्राउंड में तो दिख रहा है वैसे। हाँ, इसमें दिख रहा है। वो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, वो ग्रीन स्क्रीन आज ही हमने ट्राई करा तो उसके कारण थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, बट दैट्स ओके। तो आपको आई डोंट नो वो कहानी याद है कि नहीं, बट आपको मालूम नहीं, बट कितने लोगों को ये पढ़ाया गया है किताबों में कि भाई एक जो ट्रायंगल होता है, इसके जो तीनों त्रिकोण हैं, the sum of three angles of a triangle is 180 degrees। ऐसा पढ़ाया गया होगा, बहुत लोगों को बताया गया है। कितने लोगों को लगता है sum of angles of a triangle is 180 degrees? Maybe it's a polling question। आप लोग please raise your hand, please whatever। solid game sir, it will be sine wave। क्या बात है, ये धारिया जैन ने इतनी बार लिख दिया सर, इट विल बी साइन वेव। एक बार ही लिखते तो भी पढ़ सकते थे। कितने लोगों को लगता है कि भाई क्या कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्रीज? सब लोग ऑलवेज 180 डिग्रीज। एंड आई थिंक
I would say actually that is not correct. Sum of angles of a triangle is all the way from 180 degrees to 900 degrees, डिपेंडिंग कि आपने वो सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल कहां बनाया, किस चीज के ऊपर ट्रायंगल बना रहे हैं, वो उसके ऊपर निर्भर करता है. एक अगर सर्कल, एक मौसमी के ऊपर अगर आप ट्रायंगल बनाते हैं, आपके घर में मौसमी पड़ी है, उस पर कोई भी ट्रायंगल बनाइए, उसके एंगल आप नापेंगे तो गारंटी है 180 से ज्यादा ही होगा. इनफैक्ट अगर नॉर्थ पोल को 90 डिग्री से, नॉर्थ पोल जानते हैं ना, मौसमी का नॉर्थ पोल जहां पर उसका खूंटा है, उससे लेकर एक बिल्कुल नीचे इक्वेटर तक एक लाइन ले आइए, फिर 1/4 इक्वेटर के अलोंग चलिए, फिर वापस नॉर्थ पोल पर आ जाइए. समझ गए? मौसमी के नॉर्थ पोल से इक्वेटर तक आइए, इक्वेटर से 1/4 धरती के अराउंड घूमिए, मौसमी के अराउंड घूमिए 1/4, और वापस ऊपर इक्वेटर पर आ जाइए, सॉरी नॉर्थ पोल पर आ जाइए. ये तीनों एंगल्स 90 डिग्री के हैं और ये ट्रायंगल है. ट्रायंगल मतलब 3 लाइनें, 3 सीधी लाइनें, और सीधी लाइन नहीं है. तो द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्रीज ओनली इफ द ट्रायंगल यू ड्रॉ इज ऑन अ प्लेन. आपसे कोई कहे कि प्लेग्राउंड में एक ट्रायंगल बनाओ, उसके सम ऑफ एंगल्स क्या होगा, आप बोलेंगे 180 डिग्री है, तो बिल्कुल गलत है. क्योंकि अगर आपने कभी भी धरती के ऊपर ट्रायंगल बनाया तो धरती तो प्लेन नहीं है, धरती तो स्फेरिकल है. नेवर कैन यू मेक अ ट्रायंगल ऑन अर्थ इन अ प्लेग्राउंड वेयर द सम ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्रीज. नहीं, हमेशा उससे ज्यादा होगा. इनफैक्ट इट्स अ चैलेंज फॉर यू टू मेक द लार्जेस्ट अ ट्रायंगल ऑन अ स्फीयर, ऑन अ मौसमी और अ संतरा whose angle is largest. And in fact my challenge is, I tell you, you can 900 डिग्री का ट्रायंगल बना सकते हैं. ऐसा एंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसके सम ऑफ एंगल्स 900 डिग्रीज है. 180 तो बहुत पीछे रह गया. और अलग अलग जगह ट्रायंगल की अलग अलग वैल्यू होती है. खीरे पे बनाएंगे तो कुछ और आएगा, बैंगन पे बनाएंगे तो कुछ और आएगा, शकरकंदी पे बनाएंगे तो कुछ और आएगा. कभी कोशिश करिए. हमने तो सिर्फ ट्रायंगल कागज और कॉपियों पर ही बनाए. अब कल्पना करिए एक गणित को हम ट्रायंगल में घुसा कर ले जाएं तो क्या मजा आएगा. That is what I am talking about. That is spicing up the curriculum. That I think will make you fall in love. Imagine अगली बार जब आपकी मम्मी बोले कि बेटा थोड़ी मदद कर दो, बेटी थोड़ी सी ये ना सब्जी इसको ऐसे करने में मदद कर दो, आप उसमें बना बना कर ट्रायंगल्स में अपने चांदा नहीं होता है जिससे अपने आप नंबर ढूंढ रहे हैं उसमें कितना लंबा है. वो बता रहे थे वहां पर कि बहुत सारे एंगल आ जाते हैं, ढूंढ के देखते हैं. ये गणित है और इसके लिए बहुत ज्यादा सामान खरीदने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा इधर उधर जाने की नहीं, लेकिन अपना दिमाग खोलने की जरूरत है. इस तरह की चीजें हमारी क्लासों में होनी चाहिए. इस तरह की चीजें अगर हमारे टीचर्स करें तब, और बड़ी, और करने के लिए बहुत कोई मोटा इक्विपमेंट खरीदना है ये सब नहीं, साधारण से कागज से कर सकते हैं. ये कागज जिसको सभी लोग जानते हैं A4 बोलते हैं. क्यों बोलते हैं भाई A4? क्या खास बात है इसमें? 4 क्यों बोलते हैं, 5 क्यों नहीं बोलते? 6 भी बोल देते, 3 भी बोल सकते थे, -1 भी बोल सकते थे, 0 भी बोल सकते थे. क्यों A4 बोलते हैं? सोचना चाहिए. सबके पास है A4, हर कोई बोलता है. इस कागज की एक खास बात है, जिसलिए इस कागज की क्या खास बात है, इस कागज को अगर हम, इसका जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है, रेशियो ऑफ लेंथ टू ब्रेड, और इसको अगर हम आधा फोल्ड कर दें, एग्जैक्टली आधा, तो वो रेशियो एग्जैक्टली सेम रहता है. ये और ये, इसका जो रेशियो है और इस पूरे कागज का रेशियो है वो एग्जैक्टली सेम है. इसको एक बार और आधा कर दें तो अब भी सेम है, इसको एक और आधा कर दें अब भी सेम है. 4 बार मैंने मोड़ दिया, इसको और आधा कर दें, ऐसे मोड़ते मोड़ते रहें. अगर 43 बार मोड़ दिया तो चांद तक पहुंच जाएंगे, इतनी मोटाई हो जाएगी इस कागज की. और 56 बार मोड़ दिया तो सूरज तक पहुंच जाएंगे. दिस इज एपिसोड नंबर 1. कभी देखिएगा, मौका मिले तो. बड़ा सुंदर है. और इसको बोलते क्यों है, इसको क्या है वो रेशियो? व्हाट इज दैट रेशियो दैट इफ आई फोल्ड लाइक दिस and if I fold like this it remains the same? हाफ फोल्ड करने से वो रेशियो सेम रहता है. इतनी, सिर्फ इतनी ही जानकारी से I can figure out what is that ratio. I can figure out. कैसे? अगर किसी भी वस्तु की डायमेंशंस, क्योंकि रेशियो सेम है इसका मतलब डायमेंशन सेम है, मतलब प्रोपोर्शन सेम है ना, उसको बस खींच के बड़ा कर दिया. किसी भी वस्तु की डायमेंशंस डबल हो जाएं तो एरिया 4 गुना हो जाता है और वॉल्यूम ऑफ कोर्स 8 गुना हो जाता है. तो किसी भी वस्तु की डायमेंशंस कितनी चेंज करें कि एरिया डबल हो जाए? डबल करने से 4 गुना होता है. तो क्या करें कि डबल हो जाए? तो अगर 1.5 गुना करेंगे, आपने सोचा डबल नहीं करे तो बीच का कर देते हैं, 1.5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? कोई बोलेगा 3 नहीं, 3 नहीं, 1.5 टाइम्स 1.5, 1.5 टाइम्स 1.5 विच इज 2.25. तो 1.5 से कम होना चाहिएगा. आप बोलेंगे 1.4 टाइम्स करें क्या? 1.4 करेंगे तो 1.96 हो जाएगा, 2 से कम है. इसलिए उस अंक को बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2.
वो अंक जिसको उसी से गुणा करें और 2 आ जाए, दैट इज सिटिंग राइट हियर. Square root of 2 is sitting right here. This by this is square root 2. If you call this side as 1, this will be square root of 2. And interestingly, if I fold it from the beginning, from the middle, this is square root of 3. So in this simple paper, I have 3 square roots sitting. और मैं overhead में दिखाता हूं आपको, शायद उसमें better दिखे. वेरी सिंपल पेपर. सिंपल पेपर के अंदर आपको 3 स्क्वायर रूट्स दिख रहे हैं. कौन से? ये अगर 1 है, ये रूट ऑफ 1 है, ये रूट ऑफ 2 है, और ये रूट ऑफ 3 है. कभी आपने देखा था पेपर को इस तरह से? एक साधारण से पेपर के अंदर ये मजेदार चीज छुपी हुई है. ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 है. आश्चर्यचकित. मैंने इस तरह से कभी देखा नहीं था. और इसी को पेपर को वेस्ट नहीं करेंगे. ये आपके लिए चैलेंज भी है. आपको क्या करना है? इसी पेपर से एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना है, बिना कोई कागज, बिना कोई कैंची, बिना कोई व्हाटएवर, कोई मेजरमेंट, कुछ नहीं. साधारण समबाजु त्रिकोण. समबाजु मतलब समबाहु त्रिकोण, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों. तो उसका एक तरीका है, वो मैं आपके सामने, इनफैक्ट जो मोस्ट इंटरेस्टिंग तरीका है, पहले मैं वो दिखा देता हूँ और फिर आपको दूसरी वाली चीज दिखाऊंगा. तो सबसे पहले उसके लिए क्या करना है? आपको इसको आधे में मोड़ना है, हाफ. फोल्ड इट इन हाफ, एंड देन व्हाट यू डू इज टेक दिस कॉर्नर, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ. हाँ, ये वाला कॉर्नर लेके ये बीच की जो लाइन फोल्ड करी है इसके ऊपर रखना है, लाइक दिस. ठीक है, ये ऐसे रखना है. तो ये कॉर्नर हमने बीच की लाइन पर रख दिया और ऐसे फोल्ड करा कि ये वाली लाइन है इस दूसरे कॉर्नर से निकल जाए, है ना. बस इतना ही करने से ये जो त्रिकोण बना, और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है. गारंटी, आई कैन प्रूव. यू नो व्हाई? बिकॉज दिस साइड इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. दो बाजुओं में हाथ आधे में बांट दिया ना, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से कोई भी पॉइंट इन दोनों की बराबर दूरी पर होता है. तो आपको करना क्या है? पहले आधे में बांटा और फिर क्या करा? फिर एक पॉइंट ये वाला कोना उठाकर इस पे रख दिया. ये जो बना ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है. क्यों? क्योंकि इस पॉइंट से ये और ये साइड तो बराबर हैं, और इसको हमने इसके ऊपर रखा तो ये वाली साइड और ये वाली साइड भी बराबर है, लिहाजा तीनों साइड बराबर हैं. एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज, अगर इस पेपर को ऐसे करने के बाद यहां से फोल्ड कर देते हम, तो ये जो चीज बनती, ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है. And in fact, this is the largest possible equilateral triangle that can be made from A4 paper. इसकी ये साइड और ये साइड तीनों बराबर है. गारंटी है. आई हैव डन नो मेजरमेंट बट आई गारंटी यू. करके देख लीजिए. और अब मैं आपको एक दूसरा बढ़िया सुंदर एक खेल दिखाऊंगा. आशा है आप सभी लोग ये कर पाएंगे, और उसके लिए मैं दूसरा पेपर ले लेता हूँ ताकि क्लियर हो जाए. इस पर ले जा रहा हूँ 56. तो अभी मैंने क्या करा, इस पेपर को, वही चीज है बट ये बड़ी सुंदर खेल है, तो मैंने सोचा आपके सामने करके दिखाऊंगा. साधारण से कागज को 2 भागों में बांट दिया. उसके बाद, और हम बनाना क्या चाहते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल. ये दूसरा तरीका है बट दिस इज अप्रॉक्सीमेट, नॉट एग्जैक्ट. सो दैट्स व्हाई वी विल सॉर्ट ऑफ, इसमें साफ नहीं दिख रहा है, हाँ, पर उसमें वो दिक्कत हो जाएगी. ठीक है, यही करते हैं. इतना मोड़ेंगे लगभग कि ये बचा हुआ भाग जो है इसके ऊपर वापस आ जाए. ठीक है, इधर ऊपर ही दिखाएंगे, ओवरहेड में. ठीक है, तो इसको कितना मोड़ेंगे? इतना मोड़ेंगे कि ये जो बचा हुआ भाग है, ये जो बचा हुआ भाग, ये बचा हुआ पेपर है, इसको भी वापस फोल्ड करें तो इसके ऊपर एग्जैक्टली आए. अभी ये बच गया ना, ये ज्यादा, इसका मतलब ये थोड़ा ज्यादा था, इसको और कम करना पड़ेगा, और कम कर दिया हमने. ठीक है, और अब हम इसको वापस से मोड़ते हैं, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस, एंड यू फाइंड दैट दिस फिट्स एग्जैक्टली राइट, ऑलमोस्ट राइट. तो थोड़ा सा ज्यादा हो गया, तो उसको आप अंदाजे से बराबर कर सकते हैं. सो दिस, नाउ आई विल यूज माय सीजर, एंड नाउ आई विल आल्सो. तो मैंने क्या करा, एक साधारण से कागज को पहले आधा मोड़ा, और फिर इतना मोड़ा कि बचा हुआ भाग इसके ऊपर वापस हो जाए. आप पीछे से देखेंगे तो एक और आपको एक फोल्ड दिखेगा, वहां से अराउंड आप इसको कट कर दीजिए. ये क्या बन गया? इक्विलैटरल ट्रायंगल है. क्यों? क्योंकि हमने ये पूरे जो एंगल था इसको 3 भागों में बराबर बांट दिया, और इसको इसलिए खोलेंगे तो क्या बनेगा? षटकोण बनेगा. दिख रहा था ट्रायंगल, बन गया षटकोण. बनाने क्या चले थे?
बनाना चाहते थे इक्विलैटरल ट्रायंगल, उसके लिए क्या करेंगे, जो ये फोल्ड वाली साइड है इसके परपेंडिकुलर काटेंगे। परपेंडिकुलर समझते, 90 डिग्री पर, कहां से, यहां से बिल्कुल बीच में ऊपर की तरफ सीधी लाइन एंड परपेंडिकुलर लाइन में काट देंगे। ये काट दिया। अब देखिए क्या बचा, ये हमारे पास ये बचा। लगता है क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल? नहीं लगता है। लगता है क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल? नहीं लगता है। लगता है क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल? नहीं लगता है। लगता है क्या? हाँ है। क्यों है? क्योंकि हमने बेस को 90 डिग्री पर काटा। धारिया जैन, आप शायद अपने बच्चे को भी बुला रहे हैं, अरहम जैन को, उनको बुला लीजिए, वो भग गए शायद। तो, तो क्या हुआ, 90 डिग्री पर काटा। 90 डिग्री पर काटने से, कागज को काटने से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है। क्या? See, whenever you cut anything at 90 degrees, the whole thing will open upon itself and it will become a straight line. Why? Because it is reflection, 90 plus 90 is 180. तो इसलिए 180 का एंगल मतलब स्ट्रेट लाइन। ये काट के देखना पड़ेगा भाई, तभी तो होगा। अब चलिए इसी चीज को हम तिरछा काट लेते हैं। पहले 90 डिग्री पर काटा था ना ऐसे, अब थोड़ा सा टेढ़ा काट देते हैं, मतलब एट एन एंगल, राइट? सो लेट मी कट इट एट एन एंगल एंड नाउ यू टेल मी व्हाट विल हैपन। पहले हमने 90 डिग्री पर काटा था तो षटकोण यानी हेक्सागन का ट्रायंगल बन गया था। अब हमने एंगल पर काटा तो देखिए क्या होता है, ये तो कुछ और बन गया, ये वापस से हेक्सागन बन गया। आप कहेंगे हेक्सागन तो नहीं है, ध्यान से देखिए हेक्सागन है। 1 2 3 4 5 और 6। ये वाला पॉइंट पहले बाहर था, इट वॉज अ कॉन्वेक्स हेक्सागन। ये वाला पॉइंट अब हेक्सागन का अंदर आ गया, कॉनकेव हेक्सागन। Hexagon still 6 sides. Why? Because I cut it at an angle. I cut it at this angle. So it got repeated. ये वाला एंगल रिपीट हो गया। अगर मानिए 60 है तो इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल देखिए 120 हो गया। बट अगर ये 90 होता तो ये सीधी लाइन हो जाती। दैट इज ऑल देयर इज टू इट। फोल्ड के ऊपर 90 डिग्री पर काटेंगे तो सीधी लाइन हो जाएगी। तो चलिए आपके लिए एक और सवाल है। अब ये जो कोना है इसको मैं काट देता हूं और इसको मैंने तिरछा काट दिया। देखिए तिरछा काट दिया तो क्या होगा, क्या होना चाहिए? आप लोग चैट में लिख सकते हैं क्या होगा। बीच में छेद बन जाएगा। और कौन सा छेद बनेगा? षटकोण। षटकोण छेद बनेगा। मैं कैमरे के आगे ले जाकर दिखाता हूं। अब कल्पना करिए कि आपको इसी षटकोण को षटकोण की जगह आपको त्रिकोण बनाना हो तो क्या करेंगे? वापस से फोल्ड कर लेंगे और इस बार जो हमने तिरछा काटा था मतलब एंगल पर काटा था उसको 90 डिग्री पर काटेंगे। देखिए 90 डिग्री पर काट देता हूं मैं। और अब अगर मैं इसको खोलता हूं तो ये देखिए, ये 90 डिग्री पर काटा था ना, तो ये खोलते ही सीधी लाइन हो जाएगी और जो षटकोण था वो त्रिकोण में बदल जाएगा। दिखता है? षटकोण जो है त्रिकोण में बदल गया। क्यों? क्योंकि हमने तो बेसिक चीज क्या हमने सीखी, हमने सिर्फ ये देखा कि जब भी हम किसी भी चीज को अगर फोल्ड पे 90 डिग्री पर काटते हैं तो कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है, वो सीधी लाइन बन जाती है। तिरछा काटते हैं तो एंगल डबल हो जाता है और वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। चलिए इसी चीज को फटाफट आगे बढ़ते हैं। क्या करा था पिछली बार? इतना मोड़ा था कि बचा हुआ भाग उसके ऊपर वापस लग जाए, तो हमने वही काम फिर से करा और फिर पीछे से बची हुई चीज को काट दिया था, तो इसको हम फिर से काट देते हैं। एंड ऑफ कोर्स वी सॉ दैट ऐसा करने से 3 बार मोड़ा था तो ये षटकोण बन गया था। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इस बार मैं इसको एक बार और फोल्ड कर देता हूं, एक बार और इसको मैं ओवरहेड में दिखाने की कोशिश करता हूं। ये षटकोण बन गया था, इसको वापस से एक बार और। षटकोण कैसे बना था? ये षटकोण बन गया था हमारा। षटकोण को वापस से फोल्ड करा, ये आ गया। इसको एक बार और फोल्ड करा और इसमें हमने एक बहुत ही सुंदर एक ये तस्वीर बना दी थी, है ना। और चित्र कहते हैं, मान लीजिए इसको चित्र बना देते हैं। चित्र बना दिया हमने और इस चित्र के अनुसार मैं इसको अब काट लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इसी चित्र के अराउंड काट लेता हूँ। अब मैं आपको सामने दिखाने की कोशिश करूंगा। ये बिल्कुल आपके सामने वही जो हमने काटा था और इसको अब हमने खोल दिया तो देखिए क्या दिख रहा है।
ऐसे लग रहा है एक लड़की है, उसके दोनों हाथ खुले हुए हैं, और इसको अगर हम पूरा खोल देते हैं तो एक बड़ी ही सुंदर चीज बन जाती है। 6 लड़कियां हाथ में हाथ पकड़े हुए, जो षटकोण था उसको हमने ये शेप दे दी। The hexagon got converted to 6 girls holding the hands together. इनफैक्ट काफी सारे लोगों जगह ऑर्गेनाइजेशंस का लोगो भी ये होता है, सर्व शिक्षा अभियान का भी ये लोग 6 बच्चे बच्चियां हाथ में हाथ पकड़ कर बैठे हैं। क्या करा हमने, ये साधारण सी चीज रिफ्लेक्शन ऑन पेपर, इसका इस्तेमाल करा। और आपके लिए ये सवाल है अब, क्योंकि इतनी देर से आप देख रहे हैं हमको देख देख कर आप बोर होने कह रहे हैं कहाँ फंस गए, तो आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग सवाल है। आपका सवाल क्या है कि आपको ये जो हमने प्रक्रिया करी यही करनी है, एक्सेप्ट कुछ लोगों को इसमें गिटार दिख रहा होगा, बट दैट्स फाइन। अगर आपको गिटार दिख रहा है दैट्स ओके। ये जो 5 गिटार हैं या 5 लड़कियां, सॉरी 6 हैं, आपको ऐसा पेपर फोल्ड करना है ताकि 6 की जगह 5 हो। इंस्टेड ऑफ 6 यू नीड 5, इंस्टेड ऑफ 6 यू गेट 5 और 7। तो पेपर को कैसे मोड़ेंगे, देखिए हमने 3 बार मोड़ा, तो 3 बार मोड़ा था तो 6 आए। आपको क्या करना है, 5 या 7 करने हैं। और ये सब जो भी हमने आपको चैलेंजेस दिए, क्वेश्चंस दिए हैं, इन सब के उत्तर जब आपको मिलें, जब आपको लगे कि आपके पास ये जवाब है, तो आप अपने उत्तर यहां पर भेजिए। कहां पर भेजेंगे, CLI, दिस इज अवर ईमेल, CLI@IITGN। इनफैक्ट आप CCL भी कर सकते हैं, CCL@IITGN.AC.in। ठीक है, ये पूरा CCLI की जगह CCL भी कर सकते हैं। ये हमारा YouTube चैनल है, प्लीज मेक श्योर यू गो देयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस जो भी प्रेस करना होता है। youtube.com/IITGNCLI। फेसबुक भी यही है, और ये हमारी वेबसाइट है, जरूर जाइए, जरूर देखिए। मेरा ईमेल भी बहुत सरल है, manishjain@gmail.com। आपको लगता है कि आप मेरे को ईमेल भेजना चाहते हैं, या कोई सवाल हो या प्रश्न हो या कमेंट हो, तो जरूर भेजिए। एंड आई विल आई थिंक समय जो भी है उसके कारण मैं, मुझे मालूम नहीं और कितना समय है, मैं कार्ड सॉर्टिंग दिखा सकता हूँ सर, मे भी 5-7 मिनट और हम कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। वैसे तो समय की मतलब आप जो समय निश्चित करें वही। ठीक है, मैं ये एक सुंदर गतिविधि है, ये दिखाने की कोशिश करता हूँ, और फिर जी। आई थिंक वी शुड हैव सम टाइम फॉर क्वेश्चंस और कमेंट्स और व्हाटएवर। यस सर, यस। काफी सारे लोग हैं, उनके अगर कोई सवाल हो तो जी वेरी हैप्पी टू आंसर ओवर इट। ये बड़ा सुंदर एक हमारे पास अभी हम लोगों ने बनाया, आप लोग भी ये बिल्कुल कर सकते हैं। और ये काफी सारी चीजें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें से 2-4 नहीं है, लेकिन जो काफी सारी हैं वो हमारे 30 एपिसोड या एकलव्य एपिसोड्स में भी हैं। आप बिल्कुल वहां पर जाइए, देखिए, और और बिल्कुल गणित में मजा लीजिए। मुझे लगता है बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि गणित को हम इंटरेस्टिंग करें। पहले मैं दिखा देता हूं, तो फिर उसके बाद जो मेरा एक मेन बात है वो करने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए हमने ये हमारे कार्ड्स पे सब में ABCD लिखा हुआ है, और अब हमें कोई बोले कि लाइन से लगाओ, तो क्या करेंगे, हम पहले A ढूंढेंगे, है ना। तो A, ये रहा A, फिर B ढूंढेंगे, अरे बहुत टाइम लग जाएगा यार, इतना टाइम, B मिल गया। तो ये बहुत टाइम लगेगा, ये हमें नहीं करना है, हमें कुछ और मजेदार तरीके से इनको एक तरीके से लगाना है, चलिए। और इसमें बिल्कुल हाथ की सफाई, कोई चीटिंग नहीं है। ये मैंने एक सेफ्टी पिन ले ली और इसको सीधा करके इसमें एक डंडी डाल, एक छेद में डाल दिया और इसको बाहर खींच लिया। पहले छेद में डाला, फिर दूसरे छेद में डालकर इसको बाहर खींच दिया, फिर तीसरे छेद में डाला, बाहर खींच लिया, चौथे में डाला, बाहर खींच लिया, और 5वें में डाला, लास्ट वाले में, और बाहर खींच लिया। और अब देखिए क्या हो गया है। जादू कर दिया। और ये है गणित का जादू, हमने यहाँ पर करा। और इसको हम चाहते तो दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, हमने 2 छेद, ये 5 छेद से करा, आप चाहिए तो 3 छेद से भी कर सकते हैं। और इसको करने के लिए आप हमारा कार्ड, पता नहीं कौन सा वाला एपिसोड है, जब बता देना, जिसमें हमने ये करा था, वो कंप्यूटेशनल थिंकिंग एक एपिसोड है 30 स्टेम का, वो देख सकते हैं। वहां पर हमने सिखाया है और बताया कैसे बनाना है। उसके बाद हमने 5 ही नहीं करा, हमने कहा 3 छेद से भी कर सकते हैं। यही काम 3 छेद से भी कर सकते हैं। यहाँ पर 2 तरीके के थे, एक बिल्कुल बंद, एक खुला, 0 1 बाइनरी।
फिर हमने कहा 3 तरीके के छेद से करेंगे, और ये टर्नरी छेद हो गए। देखिए टर्नरी छेद किस तरह के होते हैं, इस तरह के होते हैं। ये 0 बिल्कुल बंद है, ये 1 है थोड़ा सा खुला हुआ है, छोटी डंडी के लिए खुला हुआ है, बड़ी डंडी के लिए बंद है, और ये बिल्कुल ही खुला हुआ है। इसको टर्नरी बेस 3 बेस 4 आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, या आप खुद करके लाइए। ये हमने खुद अपनी लैब में दिमाग लगाकर अपना ये बनाया। नाउ आई थिंक, और मैं एक और जादू का खेल दिखा देता हूँ, या सपोजिटली जिसको जादू कहते हैं, हाँ कोई कुछ कह रहा है, और फिर मैं जो मेन चीज है वो मैं बताना चाह रहा हूँ वो करने की कोशिश करूंगा। इसको हम बोलते हैं मेरा भारत महान। आई डोंट नो आपने देखा है कि नहीं, मेरे पास ये 5 पत्ते हैं, और ऐसे ये वाले भी 5 पत्ते हैं। चिड़ी के है, ये हुक्म, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ पर रख दिया है, और इसको भी यहाँ पर रख दिया। अब मैं चाहूंगा कि आप में से कोई हमें एंड फॉर बेटर उमेश, आप हमें बताइए कि किस गड्डी से फेंकना है, इस वाली से या इस वाली से। और मैं दिखाना चाहता हूँ कि मेरा भारत महान है, और मैं आपको प्रूव कर दूंगा कि मेरा भारत महान। कैसे करेंगे आप, मैं जो भी आप बोलेंगे मेरा भारत महान में, जब भी आप बोलेंगे मैं या तो इस गड्डी से शफल करूंगा या इस वाली से। आप बोलेंगे चेंज तो मैं चेंज करूंगा, ठीक है। सर आप आपका यूट्यूब वाला लिंक आप दिखा सकते हो, और हाँ यूट्यूब वाला भेज दीजिए, जय उसमें डाल दीजिए, उसमें चैट बॉक्स में डाल देंगे, है ना। आप उसको सर्च कर लेंगे ना, 30 स्टैम्प तो वैसे भी आ जाता है, 30 स्टैम्प सर सर्च आप करेंगे। ऐसे इट इज वेरी इजी, मनीष जैन जी लिखे और आपको बहुत सारा मिल जाएगा। कमेंट लव विद मैथ में तो लिंक करते। चलिए हाँ हाँ उमेश जी बताइए किधर से करें मेरा भारत महान। एम हाँ इधर से ई आर ए, आपने बोला ही नहीं चेंज, तो ठीक है, ये दोनों पत्ते आ गए इधर। ओके, अब आप बोल रहे हैं चेंज, तो इधर से चालू कर देते हैं। भारत बी एच चेंज कर ए, ओके, चेंज आर ए टी, कितनी बार कर सकते हैं चेंज? कितनी बार भी जब चेंज, कितनी बार भी चेंज। ओके, महान एम ए एच ए एन, आपने फिर से चेंज नहीं कराया तो ये यहाँ पर रख दिया आपने। जय हिंद जे ए चेंज कर दीजिए, एच आई एन डी, ओके। और ये लास्ट पत्ता जो बचा ये मैं आपके सामने खोल के दिखाऊंगा। इसके बाद ये दूसरा था, इसको भी खोल देता हूं। Now they are in the same order. और ये इसको भी खोल देता हूं, और ये इसको भी खोल देता हूं। एंड ऑफ कोर्स लास्ट में राजा जी आ गए। Now this was of course आपको लगेगा क्या है इसमें जादू, बट वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। एंड द क्वेश्चन इज व्हाई डिड दिस हैपन। मैंने इसमें कोई जादू नहीं करा, इसमें मैंने अपने कोई हाथ की सफाई नहीं रखी, लेकिन मेरा भारत महान करेंगे तो ही चलेगा। मेरा कोई और महान कर दीजिएगा तो नहीं चलेगा। ये मेरा भारत महान में ही क्यों चलता है, ये आपको सोचना है। नाउ इमेजिन वी आर doing these absolutely wonderful activities which are science, which are math, which are let's say even history or stories or social sciences, everything is all built in. हम ये कैसे कह सकते हैं कि खेल में गणित नहीं है? क्रिकेट में बड़ी सुंदर गणित है। धोनी जब छक्का मारे या मैं छक्का मारूं या उमेश जी छक्का मारे या जय ठक्कर छक्का मारे, किसी भी एंगल पर मारे, विराट कोहली मारे 90 डिग्री पर मारे, 90 डिग्री पर मारेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, बॉल सीधे आपके गिरेगी। बट मान लीजिए किसी भी एंगल पर मारे, बॉल जब अपने हाईएस्ट पॉइंट से गिरती है तो पहले सेकंड में 5 मीटर ही गिरती है, दूसरे सेकंड में 15 मीटर ही गिरती है, तीसरे सेकंड में 25 मीटर गिरती है, चौथे सेकंड में 35 मीटर गिरती है। गारंटी है कोई भी मारे, किसी भी एंगल पर मारे, छक्का मारे, कितना भी दूर, कितना भी हल्का, छोटा बच्चा मारे, बड़ा आदमी मारे, कोई भी मारे, पहले सेकंड में 5 मीटर ही बॉल गिरती है। गारंटी है। क्यों? क्योंकि धरती पर खेल रहे हैं और न्यूटन की लॉज लगती हैं। चांद पर खेलेंगे तो 6 गुना ज्यादा जाएगा, 30 मीटर गिरेगी पहले सेकंड में। धरती पर पहले सेकंड में 5 ही गिरेगी, दूसरे में 15, तीसरे में 25, सब जगह 10 मीटर ऐड हो गया। एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ पैराबोला। ये पैराबोला की परिभाषा है। अब क्रिकेट के अंदर हमें पैराबोला दिखने लग गया।
या पैराबोला के अंदर क्रिकेट दिखने लग गई। Cricket दोनों दिखने चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इफ वी मेक मैथ इंटरेस्टिंग। इट इज सैड दैट हमारे देश में आज तक किसी को भी गणित का नोबेल प्राइज, जो कि फील्ड्स मेडल बोलते हैं, नहीं मिला। Never, nobody has gotten it. Some people who have gotten are Indians origin, जैसे मंजुल भार्गव है, वो भारतीय मूल के हैं, मतलब उनके पिताजी लोग भारत के थे, लेकिन अक्षय एक है, वो भी भारतीय मूल के हैं। लेकिन किसी भी इंडियन को फील्ड्स मेडल यानी मैथ में नोबेल प्राइज नहीं मिला। इनफैक्ट एक ही लड़की है जिसको मैथ में नोबेल प्राइज मिला है, फील्ड्स मेडल मिला है। ओनली वन वुमन हैज एवर वन अ फील्ड्स मेडल इन मैथमेटिक्स, नो अदर गर्ल, व्हिच इज वेरी सैड। And that woman was actually Iranian American and Iranian, born in Iran, and she died a few months back, I mean few years back. Her name was Maryam Mirza Khani. बड़ी रोचक कहानी है उनकी। उनको किस तरह से गणित में रुचि हुई, उनके भाई ने, जब वो 12वीं में थी, उनके भाई को उनको गणित अच्छी नहीं लगती, तो उनके भाई ने एक बड़ी सुंदर कहानी सुनाई कि एक 3 साल के तीसरी क्लास के बच्चे की कहानी है, और काफी पुरानी कहानी है। एक तीसरी क्लास के बच्चे, तीसरी क्लास में एक टीचर आए और बोर्ड पर 1 से 100 तक नंबर लिख दिए। अब बोला ये नंबर का टोटल गिन के बताओ कितना है। सब बच्चे लिखे जोड़ने, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15। एक बच्चा कोने में बैठ के कुछ नहीं कर रहा था, टीचर को बहुत गुस्सा आया, बोले क्लास से बाहर निकल जाओ, कुछ नहीं करते हो, बताओ कितना जोड़ है, जोड़ क्यों नहीं रहे हो। बच्चे ने 2 मिनट बाद 2 सेकंड बाद खड़े होकर बोला 5050। टीचर एकदम सक पका गया, ये क्या हुआ, ये बच्चा तो कुछ नहीं कर रहा था, कहां से जोड़ के बिना जोड़े ले आया। बच्चे ने कहा 100 + 1 101, 99 + 2 101, 98 + 3 101, 97 + 4 101। ऐसे ऐसे दोनों तरफ से हिलते जाइए, ऐसे ऐसे 50 जोड़े ही बनेंगे, क्योंकि 100 नंबर है तो 50 पेयर्स ऑफ 101 विच इज 50 × 100 + 50 × 1 विच इज 5000 + 50 विच इज 5050। टीचर ने कहा क्लास से बाहर निकल जाइए, क्योंकि मेरे पास आपको बताने के लिए और कुछ नहीं है। एंड दिस यंग बॉय वाज एक्चुअली गाउस, जिन्होंने आगे जाकर गणित में बड़ी सुंदर, बड़ी बढ़िया बढ़िया खोजें करी, और ये उनकी कहानी है। जब मरियम ने ये कहानी सुनी तो उसने कहा यार इतने इंटरेस्टिंग पैटर्न्स हैं, मुझे तो नहीं समझ आ रहे थे, मुझे तो नहीं दिखे। एंड दैट इज व्हाट मैथमेटिक्स इज अबाउट। इट इज नॉट जस्ट अबाउट फॉर्मूलाज, इट्स अबाउट ऑब्जर्विंग थिंग्स, इट्स अबाउट looking at a Mosambi and drawing a triangle and figuring out the number of the sum of angles is greater than 180 degrees, और 900 डिग्री का त्रिकोण बन जाता है। या एक छिलके को ये जो खीरे को काट दें तो उसके छिलके में साइन वेव बन जाती है, या ट्रायंगुलर वेव बन जाती है, एंड थिंग्स लाइक दैट। दैट इज व्हाट मैथमेटिक्स इज अबाउट, दैट इज व्हाट मेक्स मैथमेटिक्स इंटरेस्टिंग। और मुझे लगता है जब ये चीजें हमारे स्कूलों में और क्लासों में हमारे टीचर्स करेंगे, तभी हमें कहीं फील्ड्स मेडल मिल पाएगा। ये रट रट के ये नंबर ला के सीबीएसई नंबर 100 में से 100 आ जाते हैं बच्चों के, लेकिन सेंस नहीं है, लेकिन मजा नहीं है, लेकिन जो आंखों की चमक है वो नहीं है। और जब तक वो चमक नहीं आएगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। एंड दैट इज द गोल ऑफ व्हाट वी ट्राई टू डू इन आवर लैब इन सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपको कुछ चीजें मैं बहुत सारी अपनी चीजें दिखाने के लिए लाया था, समय के कारण नहीं कर पाए। कभी मौका हो तो जरूर आइए गुजरात में और हमारी लैब देखिए IIT गांधीनगर में। अन्यथा कभी उमेश जी बुलाएंगे बॉम्बे तो हमारा जरूर सर, बॉम्बे तो मुझे लगता है आपको बुलाएंगे ही हम। इस बार तो ये नहीं होगा, जैसे ही ये नॉर्मल होगा डेफिनेटली आपको बुलाएंगे। अच्छा, अभी क्वेश्चंस का ऐसे तो मतलब जो जैसे आप कर रहे थे, बता रहे थे, तो कुछ लोगों ने अपने अपने कमेंट्स उसमें लिखे हैं, जैसे रेपिटेशन इन मिरर फ्रॉम मल्टीप्लाइड और ड्राइंग शुड बी सिमेट्रिकल। आप जैसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, कुछ लोगों ने जवाब दिए हैं। एक क्वेश्चन पूछा था जो आपने बताया, वो एरिया पाई और 1 जो आया था, तो वो एक क्वेश्चन है कि वो कैसे हुआ, वो जानना चाहते हैं, अगर आप बताना चाहें। नहीं, वो तो बेसिकली चैलेंज। हाँ तो अच्छा हुआ किसी ने वो सवाल पूछा था कि वो खीरे का जो हमने छिलका उतारा तो उसमें पाई और 1 कैसे आ गया। बेसिकली वो साइन वेव है, अगर उसकी ऊंचाई हमने 1 मान ली तो किसी भी साइन वेव का एरिया अंडर द साइन वेव इज एक्चुअली पाई। आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो आगे जाकर वो आई थिंक 11वें में पढ़ाते हैं, इंटीग्रेशन में वो बात आती है। लेकिन उसी साइन वेव को अगर आधा कर दें तो वो 1 हो जाता है। पूरा एरिया उसके अंदर पाई है, लेकिन आधा साइन वेव का एरिया एक्चुअली 1 है। कोसाइन वेव को अगर इस तरह से देखें, या 1 - कोसाइन, जो भी, मतलब इस तरह का जो एरिया यहाँ से यहाँ तक वो पाई होता है, और आधा पार्ट 1 है, या डिपेंड्स ऑन ऊंचाई कितनी लेती है, 1 है 2 है, न्यूमेरिकल है, पाई गायब हो जाता है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट ये चीजें निहित हैं, ये खीरे के अंदर निहित है। कहीं से पाई उसके अंदर घुसकर आ जाता है, या कहीं कहीं गायब भी हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो खीरे में वो पीस काटा था, उसके वॉल्यूम से पाई गायब हो गया, इवन दो इट्स स्टिल पार्ट ऑफ द सिलेंडर। तो इस तरह की या
सर मुझे लगता है आप जब बता रहे थे और कर रहे थे तो लोग मतलब इतने मशगूल और तल्लीन हो गए थे कि वो इधर तो कुछ लिखना भूल गए, लेकिन हाथ खड़े जरूर हैं। मेरे ख्याल है लेखा पद्मनाभन। लेखा, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप अपना अनम्यूट करिए और जल्दी से अपना क्वेश्चन पूछिए। एक कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं। सर आप पहले स्क्वायर रूट के बारे में बता रहे हो, मेरे को पता नहीं स्क्वायर रूट का मतलब क्या है। बहुत अच्छी बात है, मैं आपको एक सेकंड में बताता हूँ। अच्छा सवाल है। क्या नाम है? लेखा, लेखा पद्मनाभन। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 4B। 4B में। तो मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, और अगर आपको स्क्वायर रूट नहीं पता है तो कोई बड़ी मतलब कोई इसमें कोई बेसिकली कोई भी नंबर को अगर उसी से गुणा करें तो जो नंबर बन जाए उसको स्क्वायर बोलते हैं। उसकी उल्टी चीज को स्क्वायर रूट मतलब ऐसा कौन सा अंक है जिसको उसी से गुणा करके एक और नंबर बन जाए उसको, जैसे 2 को किस अंक को 2 से गुणा, किस अंक को उसी से गुणा करें तो 2 हो जाए। जैसे 2 को 2 से गुणा करते हैं तो 4 हो जाता है ना। 2 times 2 is 4. So what times what should be 2? Like 3 times 3 is 9. So what times what should be 4? 2, right? 2 times 2 is 4. So what times the same thing, right? What times what should be 2? That is called square root 2. और इसके लिए मैं ये आपको ये दिखा देता हूँ। ये बड़े सुंदर चीज है और ये जादू आपको लगेगा जादू है तो आप जरूर करके देखिए। मैं बस ये आखिरी चीज दिखाता हूँ, है ना? आप जरूर देखिए, बड़ा ही सुंदर खेल है ये। 7 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। और यहाँ पर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और काफी सारे बच्चे यहाँ पर मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि अगर चौथी पांचवी के हैं तो उनको तीसरी या चौथी में ये पहाड़े सिखा देते हैं ना। तो आज हम पहाड़ों का ही खेल करेंगे यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने स्क्वायर वाला एक बात पूछ ली लेखा ने, तो इसलिए मैंने सोचा ये खेल बड़ा रुचिकर खेल है। सभी लोग खेल सकते हैं, बाय द वे। जो 10वीं वाले हैं वो भी खेल सकते हैं, जो 14वीं वाले हैं इंजीनियरिंग कर रहे हैं वो भी खेल सकते हैं और बताएं हमें उत्तर। तो 1 का पहाड़ा तो आसान है तो उसको छोड़ देते हैं, 2 का पहाड़ा पढ़ना चालू करते हैं। 2 का पहाड़ा इज 2, ओके। 4 जहां जहां पहाड़ा आएगा उसको हम उल्टा कर देंगे। 2 4 6 8, आप भी बोल सकते हैं लेखा जी। 10 12 14 16 18 20, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 3, फिर क्या आएगा? 6, ये 6 है ना, तो ये 6 वापस हो जाएगा। 3 6 9 12 15 18, ठीक है। अब 4 का पढ़ेंगे। 4 8 12 13 14 15 16 और 20। अब 5 पढ़ेंगे। 5 10 15 20। 6 पढ़ेंगे। 6 12 18। 7 पढ़ेंगे। 7 और 14। अब 8 पढ़ेंगे। 8 और 16। अब 9 पढ़ेंगे। 9 और 18। अब 10 पढ़ेंगे। 10 और 20। और इसके बाद 11 पढ़ेंगे। तो 11 के आगे तो ये 20 से ज्यादा चला जाएगा, तो अब सबको बंद ही करते चले जाएंगे, बिकॉज 11 का और कुछ नहीं होगा। 12 भी यही रहेगा, 13 भी यही रहेगा, 14 15 16 17 18 19 20। और ऐसा करने के बाद ये 4 नंबर खुले रह गए, 1 4 9 और 16। ऐसा क्यों हुआ? क्या हुआ? ये लेखा जी आपको सोचना है। इफ यू डू दिस एक्सरसाइज, इफ यू प्ले दिस गेम विद योर फादर, अगर आप ये अपनी माताजी के साथ, पिताजी के साथ या भाई बहनों के साथ ये खेल खेलते हैं, तो ऐसा क्यों हुआ कि ये 1 4 9 और 16 खुले रह गए, बाकी सब बंद हो गए? आप ये करिए, आपको ये जो हमने आपको ये जो आप कह रहे थे ना हमें नहीं पता है ये क्या होता है, ये आपको समझ आ जाएगा। और ये चौथी में हम मल्टीपल्स या ये सब चीजें करते हैं। देखिएगा जरूर, खेलिएगा जरूर, बड़ा रुचिकर खेल है। और जो बाकी लोग हैं वो भी सोच के बताएं, हमें ईमेल में आंसर दे दें कि ऐसा क्यों हुआ। चलिए, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो और तो रुद्र के, हाँ बोलो रुद्र, जल्दी क्विक।
आपका सेशन मुझे बहुत पसंद आया। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच ओके रुद्रा श्रीकांत। ओके या थैंक यू रुद्र फॉर ज्वाइनिंग। अच्छा लगा, सारा करके देखिए और जैसा मनीष सर ने बताया है उनको फीडबैक भेजें और कुछ ओके Sir, धैर्य। हाँ बोलो धैर्य। I just wanted to tell Manish sir that I have already joined Eklavya. Oh, okay. Thank you. And I'm sending all the homeworks. Oh, very nice. Thank you so much for joining. बाकी लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं 30-30 एकलव्य. Please do join and you can send your homeworks. And if you do, you get a certificate. सर हाउ टू जॉइन एकलव्या? इंटरनेट पे जाकर गूगल सर्च करिए तो मिल जाता है ज्वाइन एकलव्य. रजिस्टर फॉर 30-30 एकलव्य. 30 ऊपर जो उनके पीछे दिख रहा है ना 30-30 इज इट फ्री? It is free for joining. If you want certificate, there is 100 rupees cost. If you don't ओके want सर, certificate, आई जॉइन। yeah, if you don't want certificate, it's completely free. सर हाँ, very So, much. okay then, I think we should conclude now. Or, सर आई हैड अ डाउट। सही है. yeah, tell me. Sir, there are many Ramanujan's lost notebooks, sir. Without any proofs in his Lost- notebooks, sir. Lost notebook, yeah. Books of Ramanujan हाँ, books. हाँ. So, without any proof, how did he write the equations? हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है. आई विश मुझे पता होता तो मैं भी रामानुजम बन जाता. ही क्लेम्स, रामानुजम क्लेम्स कि उनको जो उनके जहां भी वो रहते थे उनकी जो गॉडेस थी वो देवी आकर उनको सपने में बताती थी कि ये फॉर्मूला. इनफैक्ट तुम फॉर्मूला देखो, मैं दिखाता हूं तुम्हें एक सेकंड में. क्या इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है. मतलब लेट मी जस्ट शो यू. इस बात को लेके कई लोगों का थोड़ा ऑब्जेक्शन रहता है कि ऐसा क्यों बोलते हैं. ये देखो, ये दिख रहा है. ये रामानुजम का पाई का फॉर्मूला है. यहाँ पर इसको मैं और थोड़ा प्लस बड़ा कर देता हूं. मनीष जी को फोकस कर सकते हो उनका स्क्रीन पे. हाँ या ये देखो, दिस इज द फॉर्मूला. 1/x. Yes, sir. ये दिख रहा है, ये वाला. हाँ सर दिख रहा है अभी बड़ा उसमें. ये रामानुजम का फॉर्मूला है. आप देखेंगे ना, 1/pi is √8 upon 99 square sigma of 0 to infinity 4n factorial 4 to the power n factorial by 4 1103 plus 260 390 n plus. मतलब इतनी, मतलब मुझे तो समझ भी नहीं आता है. ये मेरे समझ के बिल्कुल ऑफ कोर्स बाहर है. बट ये क्या हो गया यार. थोड़ा सा छोटा होगा. yeah, so I don't know if I have the answer. Sorry about that. मेरे पास इसका उत्तर नहीं है. But you know. Yes, sir. Thank you. Okay. So I think sir we can conclude now. Yes, please. Yeah, thank you very much. In fact, as you said, at a very short notice, but you were so quick to accept. Only my one request is, sir, Nehru Science Center and Nehru Center, they are two different entities. We are back to back. We are both in Worli. कभी आप बम्बई आएंगे ना, तो हम दोनों में आपका विजिट कराते हैं. अरविंद परांजपे जी नेहरू प्लानिटोरियम जो है नेहरू तारागढ़, उनसे जुड़े हैं. नेहरू सेंटर के अंडर में आता है वो. और हमारा जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का, जैसा कि सर ने बताया था. सर मतलब ये कोइंसिडेंस है कि हमने आपसे बात किया और उसके बाद हमारे जो सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के, उनका एक मीटिंग हुआ था. उन्होंने स्पेशल रिकमेंडेशन दिया था कि आप मनीष जैन जी को बुलाइए और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए वो एनसीएसएफ के प्लेटफॉर्म पे आके आपको लेक्चर दे. बहुत ही, और ये यूट्यूब सेंसेशन उन्हीं का दिया वर्ड भी है जो आप पूछ रहे थे कि ये कैसे हुआ. कौन है सेक्रेटरी? हमारे अभी गोविंद मोहन. नवीन. तो अभी मतलब काफी अच्छा. तो मैं तो एक्चुअली बहुत समय से आपको फॉलो करता हूँ. बहुत सारे लेक्चर मैंने आपके सुने हैं और इसीलिए मैंने उस दिन मेल भेजा था कि इस बार हम कोशिश करते हैं अगर मनीष जी आएंगे तो. ये सहयोगी है. बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका बुलाने के लिए. बहुत शुक्रिया. फिर आपको बुलाएंगे सर बम्बई जरूर. ये वादा रहा आपसे आपकी पूरी टीम के साथ पूरे ये क्रिएट करके टीचर्स के लिए. आई थिंक वर्कशॉप जैसा आप बता रहे हैं वो हम कराएंगे. Okay, thank you. Excuse me, sir. आई थिंक वी कैन कंक्लूड. बेटा कौन बोल रहे हैं? हम तो देख नहीं पा रहे. अनन्या. अनन्या, हाँ बोलो जल्दी से क्योंकि सर का टाइम अभी काफी Sir, can we join the 30-30 Eklavya
today? Yes, you can join to Eklavya. Okay. Okay. Please join. Okay, sir. It was bye-bye. really interesting. Thank In you. fact, Sir, I have also enjoyed and Nehru Science Center. thank you. Okay, Thank okay. you. Yes, yes. Already visited. I will go again. Okay, sure. Most welcome. Okay, we can conclude, Rajesh. Thank you very much. Welcome. Sir, I'm Danti Chivte from Reliance Foundation School. Sir, this is a very lovely session. I liked it very much. No, I could not hear. Oh, Sir, I'm Danti Chivte from Reliance Foundation School. okay. I liked the Session? session very much. Okay, thank you. Share your feedback, and it will be if those who have missed or maybe want to join, see it again. It will be available on our Facebook page also. Okay. Thank you, Mr. Jay, and thank you, Manish, sir, once again. Hope to connect once again. Sure, sir. Thank you, sir. Both of you. Thank you.